إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم فی هذا اللقاء. آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے. معزز طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب تدریبات المحادثة العربیہ، اسپوکن عربک ایکسرسائز بک. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کتاب کا ایک اور لیسن جو کہ الدرس الثالث عشر ہے وہی پڑھنا ہے، یعنی لیسن نمبر 13. اس لیسن میں ہم ایک اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع ہے الترکیب الاضافی. الترکیب الاضافی یعنی پوزیسو فریز، یا ہم دوسرے الفاظ میں بول سکتے ہیں کہ آج ہم نے سیکھنا ہے المضاف المضاف الیہ. تو یہ کیا چیز ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم گفتگو ابھی کریں گے، لیکن پہلے ہم کچھ مثالیں پڑھیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، لکھا ہے المضاف والمضاف الیہ، پھر لکھا ہے کچھ مثالیں ہیں. قلم الولد، قلم الولد، یہ ہے قلم. قلم الولد تو اس کا مطلب ہوا لڑکے کا پین، لڑکے کا قلم. اسی طرح اگر ہم نے بولنا ہے کہ لڑکے کا موبائل تو ہم بولیں گے جوال الولد. اسی طرح ہم نے بولنا لڑکے کی چابی، چابی کو کیا بولتے ہیں؟ مفتاح، ہم بولیں گے مفتاح الولد. ٹھیک ہے. اسی طرح کر کے جب ہم نے کسی چیز کو کسی بندے کی طرف نسبت کرنی ہوتی ہے تو ہم یہی والی ترکیب استعمال کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں الترکیب الاضافی، دا پوزیسو فریز. آگے اور مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، بات واضح ہو جائے گی. لکھا ہے قلم الولد، لڑکے کا قلم. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اسی طرح کر کے طالب المدرسۃ، اسکول کا طالب علم. اور اسی طرح کر کے حدیقۃ البنت، لڑکی کا بیگ. یا اور مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہے جیسے دکان التاجر، تاجر کی دکان. اور اسی طرح کر کے بیت الطالب، اسٹوڈنٹ کا گھر. اور اسی طرح کر کے جو باقی مثالیں ہیں انشاءاللہ تعالی ان پہ ہم اور گفتگو کریں گے. تو یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں یا اور پڑھیں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں دو ورڈز ہیں، دو اسم ہے. پہلا والا اسم جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں مضاف، جیسے ہم نے کہا قلم الولد، تو قلم جو ہے اس کو بولتے ہیں مضاف. اور جو دوسرا والا ورڈ ہے الولد اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ. اب دیکھیے جو دوسری مثالیں ہیں، جیسے ہم نے کہا کتاب اللہ، کتاب بک، اللہ اللہ، اللہ کی کتاب. تو کتاب اللہ اس میں بھی کتنے ورڈز ہیں؟ 2، کتاب اور اللہ. یہ جو کتاب ہیں یہ ہے مضاف، یعنی اس کی ہم اضافت کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں اس کے بعد والے اسم کی طرف، اور وہ یہاں پہ کون ہے؟ اللہ. ہم اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو پہلا والا جو اسم ہے اس کو ہم بولتے ہیں مضاف، جو کہ یہاں پہ کون ہے؟ کتاب. اور جو دوسرا والا اسم ہے اس کو ہم بولتے ہیں مضاف الیہ، اور وہ کون ہے یہاں اس مثال میں؟ اللہ. تو یہ جو ترکیب ہوگی جس میں ایک مضاف ہوگا دوسرا مضاف الیہ ہوگا، اس کو ہم بولتے ہیں الترکیب الاضافی. الترکیب الاضافی، the possessive phrase. تو آپ دیکھیں گے کتاب میں جو کچھ مثالیں اور بھی لکھی ہوئی ہے ان میں بھی یہی پیٹرن اختیار کیا گیا ہے، اور اسی پیٹرن کے ذریعے جو ہے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے بیت الطالب، اسٹوڈنٹ کا گھر. تو بیت کیا ہے اس میں؟ مضاف. الطالب کیا ہے؟ مضاف الیہ. اسی طرح
सय्यारतुल मुदर्रिसी, सय्यारा गाड़ी, छोटी गाड़ी, अल मुदर्रिसी उस्ताद, सय्यारतुल मुदर्रिसी उस्ताद की गाड़ी, उस्ताद की गाड़ी। और इसी तरह हदीक़तुल बिन्ती लड़की का बैग, हदीक़ा क्या है, हक़ीबा क्या है, मुदाफ, अल बिन्ती मुदाफुन इलैहि। तो इस पे हम थोड़ा और गौर करेंगे आगे इंशाअल्लाह ताला, और भी मिसालें आएंगी उस वक्त, और भी चीज़ें जो हैं इसके मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो हम वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह लिखा है गुरफ़तुन नौमी, गुरफ़ा रूम को बोलते हैं, अन्नौम स्लीप, सोना। तो गुरफ़तुन नौमी सोने का कमरा, यानी जिस कमरे में हम आराम फरमाते हैं, सोते हैं, वो वाला कमरा, बेडरूम जिसको हम बोल सकते हैं, गुरफ़तुन नौमी। इसी तरह गुरफ़तुद्दिरासती, गुरफ़ा रूम, दिरासा स्टडी, पढ़ने का जो कमरा है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम जिसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह सय्यारतुल इसआफ़ी, इसआफ़ असआफ़ यूसिफ़, इसाफ़ का मतलब है हेल्प करना, मदद करना। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ज़ख्मी हो जाते हैं लोग, तो उनकी मदद करने के लिए जो गाड़ी बनी है जिसको हम एम्बुलेंस कहते हैं, तो यहाँ पर सय्यारतुल इसआफ़ी अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो यह बनेगा मदद की गाड़ी, मदद की गाड़ी, तो उसको हम एम्बुलेंस बोलते हैं इंग्लिश में एक वर्ड में। इसी तरह माहदुल लुगती, माहद बोलते इंस्टीट्यूट को, माहदुल लुगती इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह अगर हमने बोलना है माहदुद्दिरासातिल इस्लामिया, तो उसका मतलब वो अद्दिरासातिल इस्लामिया, इस्लामिक स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। माहदुद्दिरासातिल खुल्किया, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल स्टडीज़। इस तरह करके आप और भी तराकीब बना सकते हैं। इसी तरह लिखा है तदरीबातुल मुहादसती, स्पीकिंग की एक्सरसाइजेस। जैसे ये किताब है तदरीबातुल मुहादसतिल अरबिया, यह है अरबिक जो है, स्पीकिंग अरबिक जो है उसकी एक्सरसाइजेस। तो तदरीबात मुदाफ है और अल मुहादसती मुदाफ इलैहि है। एक बार फिर आप देखें, कलमुल वलदी, हमने कहा कलमुल वलदी, कलम मुदाफ है, अल वलदी मुदाफ इलैहि है, ठीक है। तो यही नीचे लिखा हुआ है लाहिज़, आप इस चीज़ पे गौर करें, इस चीज़ को आप देखें। लिखा है रसूलुल्लाह, फिर लिखा है रसूल मुदाफ है और अल्लाह ही मुदाफ इलैहि है, यानी जो पहला वाला इस्म है उसकी निस्बत किसकी तरफ की गई, उसके बाद वाले इस्म की तरफ। जो पहला वाला इस्म है उसको हम मुदाफ बोलते हैं, जो दूसरा वाला इस्म है उसको हम मुदाफ इलैहि कहते हैं। और उर्दू में उल्टा होता है, यहाँ पे है पहले रसूलुल्लाह, पहले रसूल है फिर अल्लाह है, लेकिन उर्दू में उल्टा हो रहा है, पहले आता है अल्लाह, फिर आता है का की के, फिर आएगा जो मुज़ाफ होगा, तो हम कहते हैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का। इसी तरह हमने कहा कलमुल वलदी, पहले क्या आया कलम, फिर आया अल वलदी, लेकिन उर्दू में क्या आता है अल वलदी का ट्रांसलेशन पहले आएगा, हम कैंची करेंगे ऐसे, तो ये बनेगा अल वलद, मैंने लड़का, कलम का मतलब है कलम, ठीक है। अब बीच में उर्दू के ग्रामर के हिसाब से का आएगा, की आएगा या के आएगा, तो हम बोलेंगे लड़के का कलम। इसी तरह किताबुल वलदी, तो क्या तर्जमा होगा, लड़के की किताब, लड़के की किताब। तो उर्दू में ये जो है उल्टा हो रहा है। इसी तरह इंग्लिश में भी उर्दू वाला पैटर्न है। मिसाल हम कहते हैं किताबुल वलदी, तो इंग्लिश वाले भी क्या कहेंगे, बुक ऑफ अ बॉय है। तो उर्दू और इंग्लिश में एक ही पैटर्न है, अलबत्ता अरबिक में पहले मुदाफ आता है और फिर मुदाफ इलैहि आता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है जुमले लिखे हुए हैं सवाल और जवाब के पैटर्न में। यहाँ लिखा है ता1, यानी इसका मतलब है तालिब अव्वल, पहला तालिब इल्म ये बोलेगा। फिर लिखा है ता2, इसका मतलब है अतालिबुस्सानी, यानी दूसरा तालिब इल्म ये बोलेगा। आप दो लड़कों को खड़ा करेंगे, एक को रखेंगे एक साइड में, दूसरे को दूसरे साइड में, तो एक बंदा ये वाले जुमले पढ़ेंगे जो एक साइड से लिखे हुए हैं, और दूसरा जो है ता2 वो दूसरे वाले जुमले पढ़ेगा। लिखा है बैतु मन हाजा, ये किसका घर है, ये किसका घर है। तो जवाब है हाजा बैतुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का घर है। बैतुल मुदर्रिसी ये कौन सी तरकीब है, तरकीब इदाफी। बैतु क्या है इसमें मुदाफ, अल मुदर्रिसी क्या है मुदाफ इलैहि। इसी तरह कलमु मन हाजा,
یہ کس کا قلم ہے؟ قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ اور جواب ہے ھذا قلم الطالب، یہ اسٹوڈنٹ کا قلم ہے۔ تو قلم الطالب مضاف مضاف الیہ، نعم۔ اسی طرح دکان من ذالک، اب یہ دور کی طرف اشارہ، ابھی اب نیچے آگے جو ہے سامنے جو چیزیں تھیں ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اب ہے دکان من ذالک، وہ کس کی دکان ہے؟ دکان من ذالک، اب جواب میں کیا آئے گا؟ ذالک دکان، پھر جس بندے کی دکان ہوگی اس کا نام لیا جائے گا یا اس کا جو ہے کوئی وصف جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ذالک دکان التاجر، وہ تاجر کی دکان ہے، وہ ٹریڈر کی دکان ہے۔ اسی طرح کرسی من ذالک، وہ کرسی کس کی ہے؟ کرسی من ذالک، تو جواب کیا آئے گا؟ ذالک کرسی، پھر جس بندے کی ہوگی اس کا نام لیا جائے گا۔ ذالک کرسی المدیر، وہ پرنسپل کی کرسی ہے۔ اسی طرح کر کے سیارۃ من ھذہ، سیارۃ مذکر کی مؤنث، مؤنث، اب ھذا لگے گا کہ ھذہ، ھذہ، اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیارۃ من ھذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ اور جواب کیا آئے گا؟ ھذہ سیارۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم مضاف الیہ کو مینشن کریں گے۔ تو لکھا ہے ھذہ سیارۃ، مثال کے طور پر اگر ہم لیں گے خود سے بھی بنائیں گے، سیارۃ محمد یا سیارۃ الولد، سیارۃ المدرس، سیارۃ المدیر، آپ خود سے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ساعۃ من ھذہ، ساعہ گھڑی کو بولتے ہیں، تو ساعۃ من ھذہ، یہ کس کی گھڑی ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ ھذہ ساعۃ، پھر جس کی گھڑی ہوگی تو اس کا نام لیا جائے گا۔ مثال یہاں پہ لکھا ہے ساعۃ البنت، لڑکی ایک ہے اس کی گھڑی ہے یہ، ھذہ ساعۃ البنت، ساعۃ کیا ہے؟ مضاف، البنت کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اسی طرح لکھا ہے غرفۃ من ھذہ، یہ کس کا کمرہ ہے؟ یہ کس کا کمرہ ہے؟ ھذہ غرفۃ الطفلۃ، یہ ایک بچی کا کمرہ ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ جو جملے ہیں یہ آپ بار بار پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر جا کے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں اچھی سی مہارت ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے محایۃ، محایا اریزر کو بولتے ہیں، محایۃ من کس کی اریزر ہے یا ڈسٹر کے نام بھی ہم بول سکتے ہیں۔ محایۃ مینز ڈسٹر، اریزر، جس سے بھی ہم کوئی چیز ریموو کریں اس کو محایۃ بولتے ہیں۔ محایۃ من تلک، وہ کس کا اریزر ہے یا وہ کس کا ڈسٹر ہے؟ تو پھر لکھا ہے تلک محایۃ التلمیذۃ، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ، اسی کا اریزر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے اگلے صفحے پہ کچھ ایکسرسائز ہیں، اس کو آپ لوگ حل کریں گے۔ تو لکھا ہے املأ الفراغ، خالی جگہ کو پور کریں، کس سے؟ مختاراً مما بین القوسین، یہاں پہ قوس مطلب بولتے ہیں بریکٹ کو، مما بین القوسین، جو دو بریکٹس کے بیچ میں ہیں اس میں سے چوز کرتے ہوئے، مختاراً مینس بائی چوزنگ، آپ چوز کریں گے ایک ورڈ جو مناسب ہوگا خالی جگہ کے لیے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے ھذا فی الفراغ ہے، خالی جگہ ہے، الولد، تو یہاں پر ہم نے مضاف جو ہے وہ مناسب ہم نے چننا ہے، چونکہ ھذا کیا ہے؟ مذکر کی مؤنث، مذکر، اس لیے اس کے بعد جو مضاف آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مذکر، اور ساتھ میں جو مضاف ہوتا ہے اس پہ جو ہے یہاں پہ ضمہ آئے گا، پیش آئے گا، کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم آگے اور بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ھذا بیت الولد، بیت الولد، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگلی جو خالی جگہ ہے وہ ہے ھذہ الفراغ المدرس، ھذہ کیا آئے گا؟ اب سیارۃ، سیارتی کہ سیارۃ، سیارۃ، ھذہ سیارۃ المدرس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے آپ دیکھیں گے ذالک قلم البنت، ذالک قلم البنت۔ اسی طرح تلک حقیبۃ، اب کیا آئے گا؟ مضاف الیہ یہاں پہ لکھنا ہے، ھذہ یا تلک حقیبۃ الطالب
बी मुज़ाफ़ इलैह पे हमेशा जर आएगी, हाँ लास्ट में ज़ेर आएगी मुज़ाफ़ इलैह पे। इसी तरह तिल्का मिरवाहतुल मदरसती, तिल्का मिरवाहतुल मदरसती, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह जो है उस पर हमेशा लास्ट में क्या आएगी, जर। इसके बाद लिखा है इक़रा मा यली। अब कुछ और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। तो क्या लिखा है, लिखा है साअतु मुदस्सिरिन, मुदस्सिर की घड़ी, ये भी क्या है मुज़ाफ़ इलैह। पहले हमने क्या पढ़ा था, क़लमु अल वलद, लेकिन अब क्या है साअतु मुदस्सिरिन। अब इस पे अलिफ लाम नहीं है क्योंकि ये इंसानों के नाम है, ये आलम है, आलम पे हम अलिफ लाम दाखिल नहीं करते हैं इल्ला ये कि वो सिफती नाम हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साअतु मुदस्सिरिन, मुदस्सिर की घड़ी, सय्यारतु फिरदौसिन, फिरदौस की गाड़ी। तो सय्यारतु क्या है मुदाफ, फिरदौस क्या है मुदाफ इलैहि। इसी तरह गुरफतु शाकिरिन, गुरफतु मुदाफ, शाकिरिन मुदाफ इलैहि। और इसी तरह करके जो बाकी जुमले हैं वो भी आप देखेंगे कि चाहे पहला वाला जो पार्ट है वो मुदाफ, जो दूसरा वाला पार्ट है वो मुदाफ इलैहि, ठीक है। और जो मुदाफ होता है उस पे हमेशा जो है नेचुरल जो उसकी हालत है, या तो वो मुब्तदा होता है या ख़बर होता है, तो उस पे पेश आ जाता है। हम कहते हैं क़लमु, ठीक है। इसी तरह सय्यारतु, तो नेचुरल जो उसकी हालत होती है वो यही होती है कि उस पर पेश आता है। अब अगर कोई आमिल इससे पहले दाखिल हो जाए जिसकी वजह से कभी जर लगती है, मिसाल पहले हर्फ जर आ जाए तो उस वजह से मुज़ाफ़ पे जर लग सकती है, या किसी वजह से अगर नस्ब लगेगी तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मुज़ाफ़ इलैहि है उस पर हमेशा और हमेशा जर ही लगेगी, ठीक है, हालत जर में ही होगा मुज़ाफ़ इलैहि। तो यहाँ पे लिखा है हकीबतु बिलालिन, हकीबतु बिलालिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह करके जो बाकी जुमले हैं वो भी आप देखें। तो फिर लिखा है लाहिज़, आप इस चीज़ पे गौर करें, क्या लिखा है, साअतु मुहम्मदिन, साअतु मुहम्मदिन, मुहम्मद की घड़ी। फिर लिखा है साअतु मुदाफ, मुहम्मदिन मुदाफुन इलैहि। फिर यहाँ पे है अल मलहूज़ा, एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट क्या है वो आप देखें। लिखा है हुक्मुल मुदाफ, जो मुदाफ है उसका क्या हुक्म है, यानी उस पर क्या चीज़ें उस पर जो है उस पर हुक्म उन पर लागू हो रहा है, मुज़ाफ किस तरह आ सकता है। तो लिखा है अल मुदाफ ला यक़बलु तन्वीन, मुदाफ पे तन्वीन नहीं आती है। हम ये नहीं कहेंगे क़लमुन अल वलदी, नहीं, हम जो ये मुज़ाफ़ है इस पे हम एक ही पेश रख सकते हैं, और अगर किसी वजह से जर आती हैं तो एक ही ज़ेर रखेंगे, और अगर किसी वजह से नस्ब आती हैं तो एक ही ज़बर रख सकते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश इस पे नहीं आएगा। अल मुदाफ़ु ला यक़बलु तन्वीन, मुदाफ़ तन्वीन को कबूल नहीं करता है। तन्वीन बोलते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को। और लिखा है वला यक़बलु अलिफ़ लाम अत-तारीफ़, और जो मुदाफ है इस पे अलिफ लाम तारीफ़ दाखिल नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे अल क़लमु अल वलदी, नहीं, ये सही नहीं है। मुदाफ पे अलिफ लाम नहीं रखना है, हम कहेंगे क़लमु, इस पे अलिफ लाम नहीं रखेंगे, क़लमुल वलदी। तो जो मुज़ाफ़ होता है इसके बारे में दो चीज़ें याद रखेंगे। नंबर एक, ये तनवीन को कबूल नहीं करता है। नंबर दो, इस पे अलिफ लाम नहीं आता है। और फिर क्या लिखा है, लिखा है युअरबुल मुदाफ़ु हस्ब मौक़िही फिल जुमला। ये जो मुदाफ़ है इसका जो एराब होगा, यानी इस पे लास्ट में पेश आएगा, लास्ट में ज़बर आएगी कि ज़ेर आएगी, ये जुमले में जिस अंदाज से ये आ जाए उसी अंदाज से इस पे एराब डाला जाएगा। अगर नेचुरली कहीं पे आ जाएगा, या तो ये मुब्तदा आता है या ख़बर आती है, तो उस हालत में इस पे पेश आता है। अगर इससे पहले हर्फ जर आए, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा मकतबुल मुदर्रिस, मकतबुल मुदर्रिस, उस्ताद का डेस्क, ठीक है। अगर हम लिखेंगे मिसाल अल जव्वालु, मोबाइल है आला पर, किस पे, मकतब अल मुदर्रिस, तो यहाँ पे जो है आला जब दाखिल हुआ तो अब हमने बोलना है मकतबिल मुदर्रिसी। क्यों, किस वजह से, आला जो कि हर्फ जर है जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो जब वो आ जाएगा इस वजह से इस मुज़ाफ़ पे क्या लगेगी, अब
जर। यही लिखा है युरब अलमुदाफ हस्ब मौक़िही फिल जुमला, जुमले में जो उसका जाए वक़ू होगा उसके एतबार से उस पे एराब लगेगा। फिर लिखा है हुक्मुल मुदाफ इलैहि, हुक्मुल मुदाफ इलैहि, जो मुदाफ इलैहि है उसका क्या हुक्म है। तो लिखा है अल मुदाफ इलैहि क़द यकूनु मुनव्वनन व क़द यकूनु मारिफतन औ नकिरतन। जो मुदाफ इलैहि है, मुदाफ इलैहि जो है इस पे कभी कभार तनवीन भी लगेगी। कौन सी तनवीन लगेगी? दो ज़ेर लग सकती हैं, क्योंकि मजरूर होता है हमेशा, तो इस पे तनवीन भी लग सकती है। हम कहेंगे मिसाल साअतु मुदस्सिरिन, हाँ इसी तरह हम कह सकते हैं क़लमु वलदिन, किसी एक लड़के का कलम, ठीक है। और कभी कभार ये क्या कहते हैं, कभी मारिफा होता है, मारिफा अलिफ लाम के ज़रिए, क़लमुल वलदी या अलम हो इसके बाद क़लमु मुहम्मदिन, अल वलदी भी मारिफा है, मोहम्मद भी मारिफा है, क्योंकि मोहम्मद आलम है, किसी ख़ास बंदे का नाम है, और अल वलदी पे अलिफ लाम दाखिल हुआ तो वो मारिफा है। वक़द यकून नकिरतन, और कभी कभार ये नकिरा भी होता है, जैसे हम कहेंगे रक़्म गुरफ़तिन, रूम नंबर, किसका रूम नंबर ये आपको पता नहीं, ये कोई ख़ास रूम नहीं है। इसी तरह क़लमु वलदिन, किसी एक लड़के का कलम, ये ख़ास नहीं है। और इस तरह का जो आता है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, ये मारिफा भी नहीं होगा, इसको हम मारिफा नहीं कहेंगे। आप जानते होंगे कि जो मारिफा इसम होता है उसकी मुख्तलिफ़ क़स्में हैं, मिसाल आलम है, ज़मीर है। इसी तरह एक किस्म है उसमें से अल-मुदाफ़ इलल मारिफा, जब मुज़ाफ़ हो मारिफा की तरफ तब वो मारिफा है, तब वो मुज़ाफ़ भी मारिफा होता है। लेकिन अगर मुज़ाफ़ होगा नकीरा की तरफ तब वो मारिफा नहीं माना जाता है। इसके बाद लिखा है वयकूनुल मुज़ाफ़ इलैहि मजरूरन दाइमन दाइमन दाइमा, जो मुज़ाफ़ इलैहि है ये हमेशा मजरूर होता है, हम हमेशा जो है इसको हालत झर में पाएंगे। क़लमुल वलदी अलिफ लाम के साथ तब भी ज़ेर, क़लमु वलदिन तब भी ज़ेर लगी, क़लमु मुहम्मदिन तब भी ज़ेर लगेगी। इल्ला ये कि कभी मबनी हो तो वो फिर भी हालत जर में ही है, लेकिन उसमें जो एराब आएगा वो उसी एतबार से, उसमें जो हरकत आएंगी वो उसी एतबार से आएंगी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये फी महल जर है। इसी तरह कभी ममनू मिन सरफ आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो उस वक्त जो है उसको हम कहेंगे कि ये मजरूर है बिल फतह नियाबतन अनिल कसरा। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आप आगे सीखेंगे। इसके बाद लिखा है अतदरीब, एक्सरसाइज है इजअल अतरकीब अल-इज़ाफ़ी मुस्तख़दिमन अल-कलिमात अल-मुअताद कमा फ़िल मिसालैन। कह रहे हैं कि तरकीब इज़ाफ़िया बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुस्तख़दिमन मीन्स बाय यूजिंग, इस्तेमाल कीजिए अल-कलिमात अल-मुअताद गिवन वर्ड्स, जो वहाँ पे वर्ड्स दिए हुए उनका इस्तेमाल करते हुए आपने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनाना है। तो यहाँ पे जो लिखा है, मिसाल यहाँ पे लिखा है साअतुन बिन्तुन, साअतुन बिन्तुन। अब हमने इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाना है, तो साअतुन को हम क्या बनाएंगे? साअतु। और जो बिन्त है इसको हम बना सकते हैं बिन्तिन या अल बिन्ती, ठीक है। इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। इसी तरह लिखा है मिसाल क़लमुन वलदुन, तो हम क्या बनाएं? क़लमु, एक ही पेश लगता है तो हम बनाएंगे क़लमु। वलद के वलदुन को क्या बनाएंगे? वलदिन, या बना सकते हैं अल वलदी। इसी तरह करके जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं ये आप करेंगे। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि मुज़ाफ़ पे एक ही पेश रहेगा, और जो मुज़ाफ़ इलैहि है अगर उस पर अलिफ लाम आएगा तो एक ज़ेर, अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो दो ज़ेर लगेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो यहाँ पे एक और साइड से लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इजाफ़त की गई है, जो मुज़ाफ़ इलैहि रखा गया है वो अलम है, तो अलम पे हम अलिफ लाम दाखिल नहीं करते। मिसाल साअतु मुहम्मदिन, मुहम्मद की घड़ी, तो अल मुहम्मदी हमने नहीं लिखा। तो अलम में जो है आम कायदा यही है कि इस पे अलिफ लाम हम दाखिल नहीं करेंगे, तो ये भी आप इसी तरह से फिलअप करेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो ये है सही तराकीब अल-इज़ाफ़िया। यहाँ पे कुछ तराकीब लिखी हुई है लेकिन ये गड़बड़ इसमें की गई है, हमने इसको सही करके मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनाना है। हमने देखना है कहीं मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम तो नहीं लगा है, अगर लगा है तो अलिफ लाम हटा देंगे, अगर मुज़ाफ़ पे तनवीन है तो तनवीन हटा देंगे। और इसी तरह करके जो मुज़ाफ़ इलैहि है क्या उस पे जो है जर रखी गई है कि नहीं, अगर जर नहीं रखी है तो हमने जर रखनी होगी।
آپ دیکھیے الموظف الفندق، اس نے الموظف جو کہ مضاف ہے اس پہ الف لام لگایا ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم موظف الفندق بنائیں گے، یعنی ہوٹل کا امپلائی۔ اسی طرح اسم الاسم شارع، تو کیا بنے گا؟ اسم الشارع یا اسم شارعین۔ اسی طرح کر کے رقم ہاتف، تو ہم کیا بنائیں گے؟ رقم ہاتف یا رقم الہاتفی، الہاتفی بھی لکھ سکتے ہیں یا ہاتفن لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ الف لام لگائیں گے تو ایک ہی زیر، اگر الف لام ہٹا دیں گے تو دو زیر ڈالیں گے۔ اسی طرح غرفۃ ضیف، مہمان کا کمرہ، غرفۃ ضیف یا غرفۃ الضیف الف لام کے ساتھ۔ اسی طرح کر کے جو اس میں باقی ہے المدیر مدرسہ، تو کیا بنے گا؟ مدیر المدرسۃ یا مدیر مدرسۃ۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ یہ خالی جگہ پور کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس لیسن کو اچھے سے سمجھا ہوگا، اور آپ اس کی خوب پریکٹس کریں گے، خود سے بہت سارے جملے بنائیں گے، کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے، جو کہ اسی ترکیب پہ مشتمل ہوں گے، ایک مضاف ہوگا، ایک مضاف الیہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فی امان اللہ تعالی۔